Hello everyone. Today we will discuss some questions from MS Chauhan. Alkyl halide substitution wala part. Okay. So now we will discuss question number 5, level 1. We are discussing level 1, question number 5. Now in question number 5, we have been given this substrate. Now you have been given I minus, which is a strong nucleophile, and you have given polar aprotic solvent. That means SN2 might take place. Now we have two positions where nucleophile can attack. Now this position is less hindered, right? So it will attack here. It will not attack at other position. So we will get this compound. All right. So this was question number 5. Now next is question number 10. Question number 10 is, which compound undergoes nucleophilic substitution with NaCN at the faster rate? Now we are doing nucleophilic substitution and NaCN. Now Cn minus is a strong nucleophile. That means SN2 might take place, will likely to take place. Now for SN2 the fastest rate would be least crowded position, electrophilic position you can say. As you can see in option number A, you have 1 degree carbon and not at all crowded. So the option will be 1 only. All right. Next is question number 23. SN1 and SN2 products are same with. Now, if you check out this, now SN1 and SN2 same. If we go by SN2, we will get, let's say our nucleophile is this one. So we will get our product here. In SN1, in case of SN1, we will get carbocation here and it will rearrange and it will form like this and the product will be this. Now we want that type of position at which rearrangement cannot take place, right? So if you see, if you look at the C option, in C option you have this compound. Your attacking position is far from 3 degree carbon, so it cannot rearrange. Therefore SN1, SN2, both product would be like this. Because here it is 2 degree cannot rearrange, here it is 2 degree cannot rearrange. That is why. Okay, this was about question number 23. Now question number 24. In question number 24, what is happening? Consider the nucleophilic attacks given below. Select in each pair that shows the greater SN2 reaction rate. Greater SN2 reaction rate. Okay. So you have A option. In A option, you have this or this compound. Now here Cn minus will attack here and here it will attack here.
we have two position. Here OCOR is there, here BR is there. Now SN2 रिएक्शन रेट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर. क्राउडिंग तो खैर सिमिलर है. नाउ ये जो डेल्टा पॉजिटिव है और ये जो डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो Br है, कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, वो आसानी से टूट जाएगा कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप. तो इसमें रेट ज्यादा होगा पहले वाले में, एक एक केस में. बी वाले केस में क्या है, CH3Br है और हम रिएक्ट करवा रहे हैं HH माइनस के साथ. और दूसरा है CH3SH, इसके साथ CH3SH. ऑब्वियसली ये जो है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी. अभी नेक्स्ट है, यू हैव ब्रोमीन, यहाँ पे Cl माइनस इन DMSO और या फिर I माइनस, और किसमें है, DMSO में है. नाउ nucleophilicity order, this part is very important. Nucleophilicity order PAS में कितना होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हलाइड आयंस का कैसे ऑर्डर रहता है, F माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा रहता है, फिर Cl माइनस का, फिर Br माइनस का, फिर I माइनस का. और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है इस तरीके से. नो, ऐसा क्यों होता है. नो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, F माइनस, इन जनरल में बता रहा हूँ, F माइनस का चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है. इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, F माइनस जो है वो काफी ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मोर चार्ज डेंसिटी. तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, तो इसका हाइड्रेटेड साइज जो है वो बढ़ जाता है. हाइड्रेटेड साइज जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है. बट in polar aprotic solvent, solvation is not there. Solvation is not there. Therefore, इसका जो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है. चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. कि वहां पे सॉल्वेशन टाइप का प्रोसेस नहीं होता है, तो हम उस तरीके से देखेंगे नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे लग रहा है. तो DMSO में Cl माइनस का रेट ज्यादा होगा, Cl माइनस का रेट ज्यादा होगा I माइनस से. और जो D जो ऑप्शन है दैट इज इन मिथेनॉल. नाउ इन केस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो उसमें I माइनस जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. 26 में क्या है, Z2 ब्यूटीन है और Z ट्यूब ब्यूटीन किस तरीके से बनेगा, ये मेरा इस तरीके से बनेगा. ठीक है, ये हुआ तुम्हारा Z ट्यूब ब्यूटीन. तो ये मेरा Z2 ब्यूटीन है. ठीक है, मैं जब इसको Br2 H2O के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इस तरीके से बनेगा. Br और OH जो है वो ऑपोजिट साइड लगेंगे इस तरीके से.
ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये इस तरीके से हो। ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट किससे करा रहे हैं, NaOMe से। नो, NaOMe क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या करेगा, ये एज अ बेस काम करेगा, ये एसिडिक H को लेके जाएगा। और जब ये एसिडिक H को लेके जाएगा तो हो क्या रहा है मेरे पास, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, वैसा ही कुछ ये जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वो कैसे होंगे, एक तो होगा इस तरीके से, ठीक है, दूसरा मेरा रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से वी विल गेट टू प्रोडक्ट ये। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। इन 28 रिएक्शन वन में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ये दिया हुआ है इस तरीके से, OTS एंड Me2। ठीक है, ये CH3CO O माइनस जो है वो अटैक कर रहा है। नाउ यहाँ पे क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है, डायरेक्टली पीछे साइड से, बैक साइड से अटैक कर रहा है, एंड वी विल गेट लाइक दिस OAC and Me2। ठीक है, नाउ इन रिएक्शन टू व्हाट इज गिवन you have this compound। अभी if you see, when you have lone pair, when you have a nucleophile in your compound only, और देखो OTS जो है वो ऑपोजिट पोजीशन पे है, तो लिविंग ग्रुप लीव कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, NGP टाइप रिएक्शन हो रही है, NGP ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है। तो मेरे पास जो है वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अभी मेरे पास क्या है, CH3CO माइनस, अब वो अटैक कर रहा है, तो या तो वो यहां से अटैक करेगा, ठीक है, या वो यहां से अटैक करेगा। वी हैव टू पोजीशंस। तो चलो दोनों पोजीशन हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं, और वो भी ऑपोजिट साइड से करेगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। मतलब यहां से यहां पे SN2 टाइप का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये वाला टाइप बनेगा, दूसरा मेरा जो है ये इस तरीके से बनेगा। ना दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है।
सो हमें मिरर इमेज इस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, इनएंशियोमर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। नाउ 28 के बाद 35, 35 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास ए जो है वो है न्यूक्लियोफाइल प्लस आर एल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्लस आर प्लस एल माइनस है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, मगर सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाओगे तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, दे विल बी मोर स्टेबल if polarity of solvent is increased। ये चार्जेस ही तो हैं, चार्जेस का तो पोलैरिटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, if पोलैरिटी बढ़ जाएगा तो सॉल्वेंट्स इंक्रीज। नव इन बी तुम्हारे पास जो है यहाँ पे L के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है आगे बढ़ना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे एल पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है। एनीवे चलो एल पे यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज एट ऑल, कोई चार्ज नहीं है, तो इट वॉन्ट बी मच स्टेबल इन solvent whose polarity is increasing। पोलैरिटी बढ़ेगी तो इसके पास तो चार्ज है ही नहीं, इसका तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा, तो इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा जो रेट है। सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने से रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, which of the following is most reactive towards SN2 reaction। now SN2 reaction हमें चाहिए कि हमारा जो पोजीशन है वो less crowded हो। for SN2 reaction we want least crowded position plus we want more and more delta positive। now if you see a D option, so because of this minus M group, ये क्या है, हाईली डेल्टा पॉजिटिव टाइप है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ 48 क्वेश्चन में जाते हैं। 48 क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास तीन चार कंपाउंड अनायन दिए हैं बेसिकली, तो मेरे पास ये इस तरीके से, इन्होंने बोला है व्हेन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन सबसे जल्दी जाएगा, कौन सबसे जल्दी जाएगा वो आपको निकालना है। तो इसमें क्या है ना कि लीव होने के बाद कौन कितना स्टेबल बन रहा है, लीव होने के बाद कौन कितना स्टेबल बन रहा है। देखो यहाँ पे रेजोनेंस जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, और ये माइनस आई जो है वो भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, हाईली स्टेबल हो गया। ये वन वाला जो है इट इज वेरी वेरी स्टेबल, टू वाला जो है इससे स्टेबल हो रहा है, बट इसका माइनस वाला जो इफेक्ट है CF3 का वो इससे ज्यादा है, तो ये 2 पे आएगा ना। इन दोनों में कंपटीशन है, देखो यहाँ पे ये फिनाइल के साथ क्या कर रहा है, फिनाइल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पे ये CO ग्रुप के साथ कर रहा है जो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस होने के बाद, तो ये क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है फोर्थ वाला कंपेयर टू द थर्ड वन। इसलिए मेरा जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी कितना है अनायन का उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। नेक्स्ट इज 53। 53 क्वेश्चन में क्या है, which of the following phrases are not correctly associated with SN1 reaction। now SN1 reaction में कौन कौन से phrases जो है नहीं चलते हैं। now ऑप्शन 1 है रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, तो 1 जो है वो चल जाएगा।
टू क्या है, द रेट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। भाई पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है उससे रेट जो है वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि SN1 में क्या है, कार्बोकटायन बन रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो रेट जो है वो फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 जो है वो इफेक्ट करता है। 3 क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग रेट। देखो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो है SN1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके रेट में न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो वो गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला क्या है, रिएक्टिव से 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, आई थिंक ये सभी को पता है, तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे। फिफ्थ वाला जो है, प्रोसीड्स विद कंप्लीट इन्वर्जन, वो तो SN2 में होता है, SN1 में थोड़ी होता है। SN1 में तो क्या होता है, रिटेंशन टाइप होता है, या फिर दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, ग्रेसिमिक मिक्सचर मिलता है SN1 में। तो हमारा क्या है, 3 और 5 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। नाउ इन 54 क्वेश्चन जो है तुमको दिया हुआ है ये इस तरीके से, CH3 है और यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है इस तरीके से, SO2Cl2 है, तो वो तो क्या करेगा, एलिफेटिक पे अटैक करेगा, तो एलिफेटिक पे अटैक करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल भी है, 3 डिग्री भी है, ऊपर वाला तो क्या 1 डिग्री है, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होगा। NBS क्या मतलब, NBS का मतलब होता है अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन, बट यहाँ पे ऑलरेडी Cl लगा हुआ है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि वहाँ पे रेडिकल बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास CH2Br आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नाउ मेरे पास आता है KSH। KSH क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि CBr का बॉन्ड निकलना जो है वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि साइज गैप बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से CH2SH, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 54। नाउ नेक्स्ट इज 56। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा NBS है। NBS क्या होगा भाई, वो अलाइलिक पोजीशन पे करता है, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा, एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा डिग्री वाला है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 56 के बाद आता है 58। 58 में क्या है, तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो ये क्या है, ये भी थाइल है, यहाँ पे भी थाइल है, तीनों क्या ओपन चेन वाले हैं, ओपन चेन वाले हैं, बाकी दोनों में क्या है, क्लोज चेन वाले हैं, और क्लोज चेन वाले जो हैं वो ज्यादा क्या नाम है, देखो यहाँ पे बेसिसिटी देख रहे हैं, क्यों बेसिसिटी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये अमाइन जो है मिथाइल आयोडाइड पे अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफ रिएक्शन मतलब सारे एटम जो है सिमिलर हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिपेंड करती है बेसिसिटी पे। नाउ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो है हम कैसे देखते हैं, +I +4 से। नाउ +I इथाइल इथाइल का लग रहा है तीनों जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा -I का इफेक्ट है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, बट यहाँ पे इस इथाइल की वजह से मतलब यहाँ पे +I लग रहा है। क्लोज चेन में जो है क्या नाम है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो लेस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो लेस होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, सेकेंड वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाले का, थर्ड वाला बाद में क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का -I लगने की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, और फिर लास्ट में मेरा 1 वाला आएगा, इस तरीके से होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ 58 के बाद आता है 61। नाउ 61 में क्या है मेरे पास, CH3 CH3 PH, यहाँ पे CH
यहाँ पे CH3, यहाँ पे OTS, यहाँ पे आ गया 14। तुम क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ठीक है, हीट कर रहे हो। अभी क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास OTS है, और OTS जो है वो क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और हीट करने पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो है ये वाला पार्ट जो है वो निकल रहा है। जैसे ये वाला पार्ट निकलेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OTS। टोसाइल जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब क्या है, ये कार्बोकेटाइन सेकंड डिग्री पे बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने पे कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, ये हमने देखा है कि फिनाइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3, यहाँ पे पीएच जो है वो शिफ्ट हो गया। अब क्या है, मेरे पास हीटिंग है, तो यहाँ पे H जो है चला जाएगा। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। बस ये ध्यान रखना है, C14 पे पीएच आएगा। देखो दोनों ग्रुप सेम हैं, तो पीएच कहाँ पे भी आए फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे, बट C14 पे पीएच आएगा, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, 61 के बाद में तुम्हारा है 64 क्वेश्चन। 64 में क्या है, R2 ऑक्टाइल टू साइलेट। तो मेरे पास क्या है, ये 8 कार्बन है, 3 3 6 एक साथ, एक 8, यहाँ पे टू साइलेट है इस तरीके से। इस सॉल्वलाइज इन वाटर अंडर आइडियल SN1 कंडीशन द प्रोडक्ट विल। तो तुम क्या कर रहे हो, पानी में उसे SN1 के उससे लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये कायरल है। ठीक है, और ये R है। तो SN1 में तुम्हारे पास क्या बनेगा, SN1 में तुम्हारे पास ऑक्टेन है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे OH लगेगा, ये भी कायरल है। तो ये R भी बनेगा, S भी बनेगा। हमें पता है कि इन्वर्जन जो है वो ज्यादा होता है, इन्वर्जन जो है ज्यादा होगा, तो S ज्यादा बनेगा, R जो है वो कम बनेगा। किस तरीके से रहेगा, ऑप्शन जो है इसके गलत दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, है ना। ऑप्शन जो दिया है वो गलत दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना। 64 में ऑप्शन इनकरेक्ट। 66 जो है, 66 में क्या है, among the given halides which one will give the same product in SN1 SN2। तो हमें देखना है कि रीअरेंज से फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। इसमें क्या है, जो डाउट हो सकता है वो वन में हो सकता है। ये मेरा वन वाला पार्ट है। ठीक है, ये मेरा वन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, SN1 के केस में क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि ये प्लस जो है वो रीअरेंज होगा। अब ये रीअरेंज क्यों हो रहा है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट यहाँ पे क्या है ना, ये रीअरेंज पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 3 डिग्री की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये यहाँ पे चला जाता है। 2 बार रीअरेंज होता है यहाँ पे, इसीलिए SN1 और SN2 जो है उसका प्रोडक्ट जो है उसको नहीं मिलेगा। SN1 SN2 दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंज नहीं कर रहा है। ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि दोनों जगह पे दोनों 2 डिग्री वाले हैं, बट उसके बाद भी जो है यहाँ पे वो अगला शिफ्ट होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है वो रीअरेंजमेंट। बट यहाँ पे वैसा हो रहा है 3 डिग्री स्टेबिलिटी की वजह से। सेकंड में तो क्या है, सेकंड में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा, थर्ड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और फोर्थ में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। वहां पे सब 2 डिग्री वाले ही है, और थर्ड में भी 2 डिग्री वाले हैं। ठीक है, तो 66 में वन का डाउट हो सकता था, वो मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है, तुम्हारे पास एनिसोल है। ये तो क्या है, ईथर हो गया तुम्हारे पास। ईथर में जब तुम एक्सेस HI करते हो
तो क्या सब जगह आई लग जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, फिनोल जो है वो तुम्हारा एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे OH लगता है और CH3I बनता है। अगर ये ऐसा होता, मान लो R एलिफेटिक होता, एलिफेटिक में मैं सेम करा तो यहाँ पे RI प्लस CH3I दोनों बनते हैं, बट एरोमेटिक में तुम्हारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ये ध्यान रखना। 73 में क्या है, यू हैव Me डबल बॉन्ड CCCCl, H2 आ रहा है। नाउ H2O जो है वो यहाँ पे क्या SN1 रिएक्शन हो रही है, बट यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी इसमें न्यूक्लियोफाइल है, वही एल्कीन जो है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो एक तरीके से किसका काम कर रहा है, वो एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन करेगा NGP टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ये बनाऊं तो मेरे पास बनेगा CME प्लस ये मेरे पास एक रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से रिंग बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बाद में फिर H2O की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH लग जाएगा जहाँ पे भी कटायन आया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 73 के बाद क्या आता है, 74। तो यहाँ पे क्या है, OH है, CH2OH है, यहाँ पे HBr है और हीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस Br माइनस है, वो ये यहाँ पे जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा। बेसिकली पहले OH2 प्लस बनेगा, वो निकलेगा, फिर Br माइनस आएगा, तो इतना लंबा प्रोसेस होगा, उसको मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, बट अगला वाला जो है इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, OH है और यहाँ पे एक तरीके से ईथर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस Br माइनस है और हीट भी दिया हुआ है। ये क्या है, ये इस H प्लस को लेता है, यहाँ पे मेरे पास बनता है OCH3 H प्लस OH। Br माइनस जो है वो इसको हटा के ये इसको निकाल लेता है, इस पे अटैक करके, तो मेरे पास इस तरीके से बनता है OH और OH। ईथर के केस में अलग सिचुएशन होती है, ध्यान रखने वाली बात। 75 में क्या है, 75 में यू हैव ये H है, ये ONS है। ONS का स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है, वो एक तरीके से लिविंग ग्रुप है तुम्हारा, क्या है वो, लिविंग ग्रुप है। नाउ तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको एक तरीके से 6 मेंबर की तरह ट्रीट करो, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एक तरीके से अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनजीपी का प्रोसेस हो रहा है। एनजीपी का जो प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ पे एल्कीन क्या है, इज ए न्यूक्लियोफाइल, और वो वहां पे अटैक करके ओएनएस को निकाल रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे हमारा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर मेरा OH जो है वो अटैक करेगा। नाउ जो रेट है, रेट किसकी ज्यादा होगी, इफ यू सी थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 CH3 के ग्रुप अटैच है, वहां पे क्या है 2 + I के ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 + I के ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी वजह से वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो अटैक कर पाएगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाले से, फिर वन वाले से, 2 + I 1 + I। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर देगा, NGP हो रहा है प्लस I इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है 75 में। 76 में क्या हो रहा है, 76 में यू हैव दिस कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिनेस में 2 मोल जो है तुम्हारे पास NH2 बेस के हैं,
हमारे पास एक एसिडिक एच ये है, एक एसिडिक एच ये है, ये क्या दोनों चलेगा, ठीक है, दोनों चलेंगे। अब क्या है तुम्हारा C4H9Br है। अब इस पे ये पहले अटैक करेगा या ये पहले अटैक करेगा। अब ये क्या है, ये वाला जो है यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, दोनों तरीके से रेजोनेंस है ना, तो ज्यादा बिजी है बट ये अवेलेबल है, ये क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा और बाद में मेरे पास ऐसे बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये है, फिर पानी है तुम्हारे पास, वो एच लग क्या नाम है, एच ले लेगा, ये एच प्लस से H3O प्लस दिया हुआ है ना, तो ये एच ले लेगा उससे, तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो 76 में ही हो जाएगा। 78 में क्या है, 78 में यू हैव रिएक्टेंट X और तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट टाइप तुमने कुछ डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पे CH3 है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे कुछ CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मेरे पास पायरिडीन है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर और इस सब्स्टिट्यूएंट को देखो, यहाँ से Cl जाएगा और वो वाला पुराना वाला जो रिएक्टेंट है उसमें अल्कोहल होना चाहिए ताकि HCl जाए और ऑक्सीजन का लिंकेज देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा इस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पे वो वाला कंपाउंड बना रहा हूँ रिएक्टेंट वाला, ये वाला जो है ना रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या है, ये OH होना चाहिए, यहाँ पे H होना चाहिए, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H, तो इसका H गया है और इसका Cl गया है, तब जाके तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो वहां पे अटैक कर रहा है सल्फर वाली पोजीशन पे और Cl को निकाल रहा है, इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। या फिर ये बोल सकते हो पायरिडीन जो बेस है वो इस H को लेके जा रहा है, यहाँ पे O माइनस आएगा और वो सल्फर पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा, तो हमारा रिटेंशन वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये बनने के बाद हमारे पास है N3 माइनस, N3 माइनस जो है वो क्या करेगा, OH जो है उसको हटाएगा और खुद अटैक करेगा, SN2 टाइप कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि N3 माइनस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए SN2 टाइप प्रोसेस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 78 के लिए। सॉरी, इससे नहीं जाएगा, N3 जो है वो यहाँ से जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है तुम्हारा, OTS बन गया यहाँ पे, OTS क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे N3 माइनस जो अटैक करेगा यहाँ पे SN2 प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। 78 के बाद हम 82 पे जाते हैं। 82 में क्या है तुम्हारे पास, ट्रोपाइलियम है, ठीक है। पानी में जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, जो कटायन ज्यादा बाहर निकलना चाहते हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस वाला CPM बनेगा,
वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो पानी में वो पोलराइज हो जाएगा, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। वैसे ही 3 डिग्री वाला जो कार्बन 9 अल्फा H वाला है वो भी बाहर निकल जाएगा, वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। ट्रोपैलियम जो है वो ट्रोपैलियम कार्बोकैटायन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाता है। देखो ना यहाँ पे एरोमेटिक बन गया ये, तो ये भी बाहर निकल जाएगा और मेरे पास ये बच जाएगा। नाउ इसका टॉटोमर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें रिंग बन जाती है, मतलब एरोमेटिक रिंग बन जाती है, बेंजीन टाइप बन जाता है। तो मेरे पास एक एरोमेटिक ये है 1 और एक एरोमेटिक ये है 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा 82 में। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में क्या है? OTS, यहाँ पे भी क्या है? OTS है, H2S। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? पहले मेरा जो SH है वो यहाँ पे लग रहा है, किसी भी एक पोजीशन पे लग जाएगा SH। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा OTS है। ठीक है, OTS जो है वो, और दूसरे OTS की जगह पे क्या आ जाएगा? SH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा SH। ठीक है, अभी क्या है? ये, सॉरी, ये जो है ये SH ऐसे आएगा। ये क्या करेगा? ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। और जब ये रिंग बनाएगा तो मेरे पास रिंग कैसी बनेगी? मेरे पास रिंग ऐसी बनेगी। ठीक है, अब ये रिंग इस तरीके से बनेगी, OTS बाहर निकल गया है। अब आता है मिथाइल पोजीशन की बात। तो ये दोनों मिथाइल पोजीशन जो है वो पहले जैसे थे उसी तरीके से रहेंगे। तो या तो ये इस तरीके से बनेंगे, या तो ये इस तरीके से बनेंगे, दोनों सेम, या फिर ये इस तरीके से बनेंगे। खैर फर्क ही नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम किससे आपस में ही कंपेयर करें, तो दोनों सेम होने चाहिए बस। तो मेरे प्रोडक्ट्स इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारा ये डिस्कशन हो गया MS चौहान का इस तरीके से। चलो।